Good afternoon, students. You are welcome in Bharat AI Lab. So we start today's session, and according to curriculum, the first year curriculum, this is for mainly beginners. Scratch module is going on, and in this module we are learning block coding concept. So we already completed two chapters, two parts of this module, and we will continue. So the lesson third is fish aquarium. So do you know about what is aquarium? Can anyone tell me what is aquarium? Any idea about aquarium? एक्वेरियम एक्वेरियम Yes, come to system and explain. आइए क्लोज आइए सिस्टम के और बताइए जरा। Aquarium is a place where aquatic animals, बोलो बोलो आगे कंटिन्यू करो। Where we keep aquatic animals, है ना, वही तो एक प्लेस होता है। So so you can see here is aquarium background and some fishes and other are swimming here and there. So how we make this, है ना, कौन सी स्प्राइट हमें लेनी है एंड किस ऑब्जेक्ट का हमें यूज करना है स्प्राइट और बैकड्रॉप के लिए एंड विच कोड फॉर स्विमिंग, बिकॉज जो स्प्राइट होती है वो क्या होती है, सेंसलेस होती है ना, और कुछ लिविंग तो है नहीं, वो एक्वेरियम बैकड्रॉप दे देंगे और जैसे ही फिश को हम उसमें इंसर्ट करेंगे तो वो खुद से स्विम करने लगेंगी, खुद से नहीं करेंगी ना, उनको इंस्ट्रक्शंस देनी होगी हमें। सो फॉर दिस go to browser. I am again repeat the step how to use Scratch online in your system. So on Google browser, in search area, you have to type official website of Scratch, which is scratch.mit.edu. Okay, imagine, program and share. सो एक वे मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से आपको एक्यूरेम वाली ये कंप्लीट करनी है, मतलब प्रोग्राम बनाना है, बट इसमें आप अपने अकॉर्डिंग भी इमेजिनेशंस और जो सोर्सेज हैं, जो मतलब ये ऑब्जेक्ट वगैरह आप इसमें यूज करेंगे, तो वो अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन स्टार्ट क्रिएटिंग इफ यू don't have any account. If you have account, click on sign in button. I already explained how to create your account and how to log in. मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ranjana, ma'am, please. Ranjana, ma'am, you have any issue? मैम आर यू लिसनिंग मी? Yes, ma'am. Clearly. अनीता मैम Yeah, ma'am. Sorry for. So, students, now we are in Scratch window. So, first of all, there is no need of this sprite, cat sprite. So click on this delete button and click on yes button. Okay. Now we need a backdrop like aquarium. So click in the category underwater. So here is two types of backdrop. ठीक है?
सो आप इसको स्टोरी क्रिएट करने के लिए दोनों बैकड्रॉप का भी यूज कर सकते हैं, बट फर्स्ट वी क्लिक ऑन दिस। ओके, नाउ वी नीड सम फिशेस, सो click on search and then type fish. So you can see there are the types of fish, starfish है, shark है, puffer fish है, jellyfish है, ठीक है, और fish। और आप जब इनको चेक करेंगे ना, इन सारी फिशेस को जब आप देखेंगे तो आपको इनके डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम मिलेगी। ये देखिए, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट कॉस्ट्यूम है। तो ये तो एक स्टोरी कन्वर्जन के लिए, अगर आपको स्टोरी क्रिएट करनी है, स्टार फिश की भी है यहाँ पर, ठीक है। तो वन बाय वन हम इनको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार फिश को कर लेते हैं ऐड, ठीक है। देन इसको ऐड कर लेते हैं और देखते हैं कुछ और हमें यहाँ पर फंटेजी में कुछ मिल जाए। पीपल भी मिल जाएंगे हमको, कुछ स्विमर मिल जाएंगे यहाँ से। ये देखिए, ये डाइवर है, इनको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यू कैन सी वी हैव एडेड 3 types of fish in your program, you can added more, or if we have need some more, so we can duplicate and we can change the costume. So how? For this, first of all, we need to change the size of this starfish. It is looking very big, so change this size and click. You have to click right and duplicate it, and then click to its costume and change its color. Okay, and change the structure also. So you change the starfish color with any color you can change. ओके, सो ऐसा लगेगा कि 2 टाइप्स की फिश हो गई है ना। ऐसे ही सेम हम इस फिश को भी कर लेते हैं। फर्स्टली वी विल चेंज साइज ऑल्सो, क्लिक ऑन इट एंड चेंज साइज, कीप इट 65। ओके, अब सेम सिमिलर हो गई है, ठीक है। नाउ राइट क्लिक एंड देन डुप्लीकेट इट and click on the costume and change its costume. You can see there is the uh, appearance और ऑलमोस्ट चेंज, जो उसका अपीरियंस है वो पूरा चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको भी आप कलर करना, चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, बट इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल। एंड यू कैन टेक मोर, एक और हमने इसका डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है। और इसको पहले डुप्लीकेट करने के लिए, चलो उसको येलो रखते हैं, ये सिलेक्टेड है तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ब्लू कलर में कोई फिश नहीं है, अच्छा सा ब्लू कलर ले लेते हैं। ग्रीन में भी कोई, ग्रीन ले ले, रेड ले ले। बताइए बेटा, क्या कलर रखना चाहते हैं आप इसका? बहुत ज्यादा हो गया, रेड कर देते हैं। चलिए रेड कर देते हैं, विंग्स को ग्रीन कर देते हैं। एक एक करना पड़ेगा क्या? यहाँ से कर दिए।
चलिए, काफी हमारा एक्वेरियम में ना काफी सारे फेसिस हो गए हैं, डाइवर्स हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इनको हमें इसमें एक्वेरियम में ये हमें इनको लिविंग दिखाना है। तो लिविंग तो ये तभी होंगे ना जब ये मूव करेंगे एक्वेरियम में, है ना, स्विम करते रहेंगे, ऐसे नहीं कि ये बस ऐसे। ठीक है। सो फॉर दिस, फॉर गिविंग द इंस्ट्रक्शंस, वी हैव टू राइट कोड फॉर दिस। सो इनका पोजीशन देख लेते हैं, सभी एक साथ ही यहाँ पर मूव करते नजर ना आए, इनका पोजीशन थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया है कि ये जो स्टेज है आपका, ठीक है, जहां जितने भी स्प्राइट और बैकड्रॉप हम यूज करते हैं वो सभी यहीं पर आते हैं ना, इधर तो नहीं आते स्क्रिप्ट एरिया में। तो ये स्टेज है, स्टेज पर जो परफॉर्म करते हैं। तो आप देखते हो स्कूल में भी अगर एनुअल फंक्शन वगैरह होता है तो जब उसकी रिहर्सल चल रही होती है तो सभी को बता दिया जाता है कि जैसे ही आपका डांस या सिंगिंग कुछ भी स्टार्ट होती है तो आपको यहाँ पर स्टैंड लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये वाली पोजीशन रहेगी। तो ऐसे ही यहाँ पर स्टेज एरिया है तो इनको भी परफॉर्म करने के लिए इनकी एग्जैक्ट लोकेशन इनको बताई जाएगी। और लोकेशन आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इन्होंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिए हुए हैं। आप जिस पर भी क्लिक करोगे वो उसकी लोकेशन यहाँ पर शो करेगा। जैसे कि अगर हम स्टार फिश की बात करते हैं तो देखो स्टार फिश की जो लोकेशन है वो यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, ये राइट साइड में है 114। और ये अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो बॉटम में है तो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसका सेंटर पॉइंट चेक करना चाहते हैं, एक्स और वाई का सेंटर कहाँ पर है, तो हम 0 0 पुट करेंगे। ऑलरेडी ये मैंने चीज सिखाई है बट मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर हमें किसी को सेंटर में रखना है, ठीक है, तो उसके लिए हम 0 0 करते हैं। तो देखिए ये स्टार फिश जो है अब इसकी जो पोजीशन है वो 0 0 रहेगी सेंटर। तो आप यहाँ मोशन ब्लॉक में भी चेक करेंगे कि अगर हमें किसी की एग्जैक्ट पोजीशन पे लेके आना है उसको, तो हम गो टू 0 0 यानी कि सेंटर। और अगर हम चाहते हैं कि ये जो है स्टारफिश वो यहाँ रहेगा, जब भी ये यहाँ से हम इसको प्ले करें गेम को अपने को, तो ये अपनी इस वाली लोकेशन से स्टार्ट हो। ये नहीं कि ये जहां पर भी अगर मूव करते करते ये यहाँ आ जाती है या फिर ये यहाँ आ जाती है इसके साथ साथ, तो यहीं से स्टार्ट करें, नहीं। चाहे ये प्लेइंग के दौरान कहीं भी हो, बट जैसे ही हम इसको रिस्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं ये अपनी पोजीशन पर आए। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो राइट में एक्सिस है वो पॉजिटिव है और बॉटम में जो वाई एक्सिस है वो नेगेटिव है। अगर हम इसको टॉप की तरफ बढ़ाते हैं तो आप देख रहे हो कि पॉजिटिवनेस बढ़ती है इसकी, है ना, पॉजिटिवली बढ़ेगा ये। और अगर हम डाउन में लाते हैं तो जो पॉइंट है वो 0 से अगर नीचे आएगा तो डाउन में जाएगा। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पर सेंटर में एक्स का है, एक्स लेफ्ट राइट के लिए है, तो अगर वो राइट साइड जा रहा है ये, तो ये आपका पॉजिटिव बढ़ेगा। ठीक है, चाहे ऊपर हो या चाहे नीचे हो, ये पॉजिटिव रहेगा। और अगर आप 0 से इसको लेफ्ट लेकर जाएंगे तो ये इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो ये केवल इस स्टार फिश के लिए ना, जितने भी आप स्प्राइट यूज करोगे सभी की पोजीशन को इसी तरीके से आपको चूज करना है। अब देखो हमने इसकी पोजीशन ये रखी है, तो हमें जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे 0 0 लिखें, क्योंकि आप देख रहे होगे कि जैसे ही इसकी पोजीशन चेंज होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी कोड में भी चेंज हो रही है। ठीक है, अब आप इसको यूज कर लेंगे। देखो अब मैंने इसको यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक है। अब ये चाहे इसको मैं कहीं पर भी कर दूं, यहाँ इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये देखो चेंज हो गई है यहाँ पर इसकी वैल्यू, है ना। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर कोड पर क्लिक करूंगी वापस अपनी जिस पोजीशन को हम स्क्रिप्ट एरिया में यूज कर लेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग स्प्राइट वर्क करेगी। क्लियर हुआ ये? पोजीशन का क्लियर हुआ सभी को कि हमें किस तरीके से पोजीशन सेट करनी होती है? ठीक है, तो अभी सभी की ना हम इसी तरीके से पोजीशन सेट कर देंगे। सबसे पहले हम इस स्टार फिश के लिए कोड करते हैं। तो पोजीशन तो इसकी सेट हो गई, ये कहीं भी जाए इस पूरे में कहीं पर भी मूव करती रहे, इसकी पोजीशन यही रहेगी। ओके, अब हमें क्या करना है कि इसको यहाँ से मूव कराना है और ये फिर यहाँ वापस आ जाए और फिर मूव करती रहे। ठीक है, तो इसके लिए इसमें मूव 10 स्टेप लगा देंगे हम। ये देखो,
अब ये देखो मूव क्यों नहीं कर रही, हिल क्यों नहीं पा रही, क्योंकि पोजीशन इसकी हमने सेट कर रखी है, और ये मूव कैसे करेगी अब। इसके बीच में कुछ ना कुछ तो हमें चेंज करना होगा, कि मूव भी कराना है और ये भी रहा ही कोड। तो इसके लिए हम यहाँ से एक कंट्रोल ब्लॉक लेंगे, और कंट्रोल ब्लॉक में हमें इसको कितने स्टेप मूव कराना है, क्योंकि यहाँ पे केवल वन टाइम ही मूव करेगा ये, हमें इसको बार बार क्लिक करनी पड़ेगी, तो वन टाइम ही मूव करेगा। तो इतना कराना है, रिपीट कराना है, या फिर जब तक गेम हम खुद से ही इसको स्टॉप ना करें ये मूव करती रहे, तो उसके लिए हम फॉर एवर ब्लॉक का यूज कर लेंगे। इसको इसके अंदर पुट करेंगे। अब चेक करते हैं, ये देखो मूव कर रही है ना। वापस से स्टॉप कर देंगे, वापस से क्लिक करेंगे, देखो मूव कर रही है। अब बात आती है कि ये जो एज होती है स्टेज की, ये जितनी भी लेफ्ट साइड राइट टॉप बॉटम, जहां भी ये स्टेज एंड हो रही है, वहां से इसको वापस किस तरीके से हमें बाउंस कराना है। सो जितने भी मूविंग के होंगे, मोबिलाइजिंग के जितने भी कोड मिलेंगे, वो मोशन ब्लॉक में ही मिलेंगे, जिसका कलर है ब्लू। ओके, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक कोड दिया हुआ है, फोन एज बाउंस, कि जैसे ही ये एज को टच करे तो वहां से ही बाउंस कर दे। ठीक है, अब देखो ये कितना फास्टली मूव कर रही है, किसी भी एज को टच करेगी, चाहे अप है डाउन है कहीं पर भी है, तो वो जो है। बट जब ये बाउंस करती है, तो कोई भी चीज अगर बाउंस करेगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये जब एक साइड से जा रही है तो सीधी जा रही है, बट जब उधर से आ रही है तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो उसके लिए इसमें एक ऑप्शन होता है सेट रोटेशन स्टाइल, इसको रोटेट कर लेंगे। अब दोनों साइड से आप देख पा रहे हो कि इसकी जो पोजीशन है वो सीधी है। ठीक है, ये तीनों कोड आपको, चारों कोड क्लियर हुए। एक पोजीशन का, एक मैंने फोर एवर का बताया कि किस तरीके से अगर हमको जब तक खुद से स्टॉप ना करें वो स्टॉप ना हो। एक मूव का हो गया कि कितने स्टेप मूव कराना है, एज को टच करके कैसे बाउंस करना है, और अगर रोटेशन चेंज करना है तो उसके लिए रोटेशन स्टाइल का यूज करना होगा, चाहे लेफ्ट राइट कैसे भी मूव करें। ओके, अब हमें इसको यहाँ से अगर हम क्लिक करते हैं, देखो स्टार्ट, जब हम इसको फुल स्क्रीन पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कोड शो नहीं होता, केवल रेड और ग्रीन बटन ही शो होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें वहां से इसको कोड को स्टार्ट करना है, तो एक हमें इवेंट में जाकर ये ग्रीन फ्लैग को इसमें यूज करना होगा। अब हम इसको यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, या फिर फुल स्क्रीन पर जाकर करें, अब ये ग्रीन फ्लैग से ही स्टार्ट होगा। टू मेन बटन होते हैं, रेड फॉर स्टॉप द गेम एंड ग्रीन फॉर रन द गेम। ओके, तो आपको भी मालूम ही होगा रेड लाइट और ग्रीन लाइट का क्या सिग्नल रहता है, तो सेम वही यहाँ पर इन्होंने इसमें यूज किया हुआ है। अब हमारा केवल एक फिश के लिए तो कोड हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रही है। इसके लिए हम इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल में, किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल में ही ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ हम इसके स्टॉप में ना वेट कर देते हैं 1 सेकेंड। अब हम इसको देखते हैं कि ये जो है 1 सेकेंड के टाइमर से ये मूव करेगी। ठीक है, ज्यादा आपको बहुत स्लो लग रहा है तो इसको आप थोड़ा सा पॉइंट में ले लीजिए, 0.5। ठीक है, तो एक फिश के लिए तो कोड हो गया। अब सभी के लिए कोड करना है, इसको क्या करेंगे हम, ये डाइव, बाकी फिश के लिए तो सेम कोड रखेंगे, जो डाइव है इसके पोजीशन हम रखेंगे यहाँ पर, बिल्कुल हमने इसकी पोजीशन बिल्कुल लास्ट में कर दी। ठीक है, ये भी चेक कर लेना बेटा, कई बार हम कोड करते रहते हैं, लेकिन हम जो भी जिसका कोड करना है हमको लग रहा है कि हमें स्टार फिश पे थे तो स्टार फिश के, लेकिन जैसे हम स्प्राइट पर क्लिक कर देते हैं ना, तो यहाँ पर इसकी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। अब ये देखो यहाँ पर ना हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा ये आपको विजिबल रहेगा। तो इसके डाइव के लिए मैं क्या चाहती हूँ कि इसकी पोजीशन तो ये रहे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेट इट्स पोजीशन। ठीक है, उसके बाद हम चाहते हैं कि ये ना यहाँ से ऐसे यहाँ पर डाई लगाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना एक ऑप्शन आता है ग्लाइड, मीन टू ऑप्शन आते हैं ग्लाइड के।
एक होता है रैंडमली कहीं भी पोजीशन लेना, एक होता है ग्लाइड, यानी कि ये रैंडम तो स्टेज में कहीं पर भी पोजीशन लेगा, लेकिन ग्लाइड जितना मैंने यहां से इसको यहां पर किया, देखो पोजीशन तो इसकी ये है, ठीक है, जो मैंने इसकी यहाँ पर सेट की थी, बट इसने ग्लाइड करके ना मैं इसको यहाँ पर ले आई। तो अब मैं इसकी ये ग्लाइड यहाँ से यहाँ तक इसकी पोजीशन रखवाऊंगी ये। इसके बाद मैं चाहती हूँ कि यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ चला जाए यहाँ, ठीक है। वापस से पोजीशन चेंज हो जाएगी, फिर से हम इसमें ग्लाइड का यूज कर लेंगे। ग्लाइड का मतलब ड्रैग कर रहा है ये, ठीक है, मूव नहीं कर रहा, वन वन स्टेप मूव नहीं कर रहा, एकदम से ग्लाइड करेगा। और उसके बाद फिर ये यहाँ आ जाएगा, then again use glide। ये बार बार इंटरनेट की वजह से इंटरप्ट हो रहा है। आई एम शेयरिंग अगेन माई स्क्रीन। स्क्रीन इज विजिबल बेटा? माई स्क्रीन इज विजिबल, स्क्रैच की विंडो आपको क्लियर दिख रही है? ओके ओके।